Hello, students, and good evening to all of you. And now I am again with you with another important aspect of management accounting of Unit Second. So this is the topic of cost, volume, profit analysis, and the subtopic is today, which I discuss with you. It is the computation of break-even analysis, and as you know very well, I already discussed with you the different aspect of break-even meaning and definitions and different things I discussed with you about the break-even analysis. So break-even analysis, as you know, it is also known as the different names are like equilibrium points, balancing point, critical point. So as you know very well, and it may be mentioned here that break-even point refers to that level of production which evenly breaks the cost and revenues and hence the names also. And if production and sales is increased beyond this point and there's shall be a profit to the firm, and if it is decreased from this point then there shall be a loss for the firm, as you know very well. तो जो ब्रेक इवन पॉइंट है एक ऐसा पॉइंट है जहां पर नो लॉस नो प्रॉफिट होता है। अगर कंपनी जो है उस लेवल के ऊपर प्रोडक्शन या सेल्स करती है तो वो प्रॉफिट में जाएगी। उस पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे अगर हम सेल्स प्रोडक्शन होता है तो हमारी कंपनी को लॉस भी होते हैं। तो with that thing in my previous lectures I discussed with you the assumptions of break-even analysis, limitation of break-even analysis, and uses of applications and etc. Now today I am discuss with you the computation of break-even analysis, how it is computed. So basically there are different things, and computation of break-even analysis, there are the three methods of computation, and basically the first one is equation method, second is contribution method, and third is graphic method. So I discuss with you in the one by one. The first one is equation method. So this is the equation method, and this method uses the following formula, which also express in the relationship of the items in of income statement, and this basically the method is very simple and not in properly used, yeah, popularly used in the different things. This simple equation may be adapted to any break even or the profit estimation situation. So this is the equation: sales is equal to variable expenses plus fixed cost plus profit. तो that means sales क्या है, sales जो है वेरिएबल प्लस फिक्स और प्लस प्रॉफिट करके हमारा सेल्स जो है आपका बन जाता है। तो यानी कि सेल्स जो वैल्यू आती है हमारी, डिवेन्यू निकल कर आता है सेल्स में, तो उसमें से ये सारी चीजें हमें जो है डिटेक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है। फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट इज ₹6 per unit, and fixed cost of ₹5,000, assuming that X is the number of unit to be sold to break even analysis. So find out the नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड इस पर्टिकुलर रेंज में, तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे बिकेंगे। तो देन अगर हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स दिए गए होते तो प्राइस आपका दिया हुआ है उसके हिसाब से हम निकाल, बट हमने क्या करना है, यहाँ नंबर ऑफ यूनिट्स निकालनी है, सेल्स निकालनी है कितनी हमें बेचना। सेलिंग प्राइस कितना है, ₹10, और तो नंबर ऑफ यूनिट कितनी हमें देखनी है, एक्स हमें, तो एक्स 10x इज इक्वल टू 6x, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट है आपका, फिर फिक्स कॉस्ट है आपका 5000, तो प्रॉफिट यहाँ दिया नहीं है तो जो नहीं दिया उसको नहीं लिखेंगे। एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस, तो 10x इज इक्वल टू 6x प्लस 5000, 10x तो अब 6000 इसको इधर ले आए तो माइनस हो गया, 10x माइनस 6x इज इक्वल टू 5000, एंड 6x माइनस के तो 4x इज इक्वल टू 5000, देन x इज इक्वल टू 5000 अपॉन 4, देन वी गेट द 1250 यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। अगर हमें सेलिंग प्राइस जो है इतनी यूनिट अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा ये जो एस्टिमेशन है वो बन जाए। तो दैट इज द इक्वेशन मेथड, देयर इज नो important thing, or I think it is not more popular and in the particular thing. So now this is the second thing, contribution method. Contribution method basically एक इम्पॉर्टेंट मेथड है, और इसी मेथड को हम मोस्टली जो सीवीपी एनालिसिस में यूज किया जाता है या अन्य जगह पर जहां हमें देखना होता है कि किस तरीके से हम इसको यूज करें। तो बेसिकली कंट्रीब्यूशन क्या है, तो कंट्रीब्यूशन जो है इट मींस डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो डिफरेंट बिटवीन सेल्स या वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल या वेरिएबल कॉस्ट, तो जो डिफरेंस निकल के आता है उसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी कि एस माइनस वी, सेल्स माइनस वी फॉर वेरिएबल कॉस्ट, और पर यूनिट अगर हम बात करेंगे तो एस माइनस बीपी, एस पी माइनस बीपी, यानी कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इसमें आ जाता है।
So basically, this method is very important and useful for the calculation of break-even point and its applications. So this method involves two basic tool. First thing is contribution, second thing is profit volume ratio. तो पहला इसमें CPP एनालिसिस में कंट्रीब्यूशन हम बताएंगे आपको कि कंट्रीब्यूशन क्या है, और कंट्रीब्यूशन जैसे हमने आपको बताया कि इट इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स. सेकेंड थिंग, अगर हम इन अदर वर्ड्स की बात करें कि क्या है, तो द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन. एक्सेस ऑफ सेल्स, सेल्स मतलब वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर जितना एक्सेस ऑफ सेल्स है वो कंट्रीब्यूशन कहलाएगा, यानी कि S माइनस बी. सिंपल से टर्म है, इफ द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन इज लेस देन द फिक्स कॉस्ट. ये कंडीशन बन जाती है कई बार, अगर कंट्रीब्यूशन जो अमाउंट है वो फिक्स कॉस्ट से कम हो जाता है तो इट विल बी ए पोजीशन ऑफ लॉस टू द फर्म. तो ये जो कंडीशन है वो लॉस की बनी रहती है. देन इफ इट इज इक्वल टू द फिक्स कॉस्ट देन इट विल बी द सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस. तो दैट इज अ पॉइंट, इट इज अनदर वे अगर हम कहें तो दैट इज अ पॉइंट, इट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट. तो जो अगर फिक्स कॉस्ट इक्वल हो जाती है सीपीपी कंट्रीब्यूशन के तो नो लॉस नो प्रॉफिट का पॉइंट क्रिएट हो जाता है. एंड दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन कैन बी कंप्यूटेड. कैसे हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं, तो देर आर टू टर्म्स. फर्स्ट टर्म इज टोटल कंट्रीब्यूशन, यानी कि कंट्रीब्यूशन इन रुपीज भी हम फाइंड कर सकते हैं, और सेकंड टर्म है आपका पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, यानी कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी हम फाइंड करते हैं. तो ये जो इक्वेशन है आपकी, इन इक्वेशंस को आपको देखना है. तो फर्स्ट थिंग इसको आपको बताया गया, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि हम और एस सी इज इक्वल टू एस माइनस बी भी लिख सकते हैं. तो प्लीज नोट इट दैट, है ना, आप लोग इसको लिखते रहिए, आप लोग इसको तैयारी करिए उस हिसाब से. देन कंट्रीब्यूशन इज आल्सो कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट. तो अगर हम कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एफ प्लस पी, यानी कि फिक्स कॉस्ट प्लस पी फॉर प्रॉफिट, sometimes in the question losses are also there, तो then it is minus हो जाएगा फिर. एंड देन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो, भी एक फॉर्मूला है इसका. तो ये तीन इक्वेशन या तीन फॉर्मूले जो है हमें टोटल कंट्रीब्यूशन अगर हम फाइंड करते हैं तो इनमें से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है, अगर क्वेश्चन में सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट है तो एस माइनस बी लगेगा. अगर क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट दिया तो एस प्लस पी लगेगा. और कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए अगर वहां पीवी रेशियो दिया है तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो को हम यूज कर सकते हैं. देन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम जाते हैं, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी आपका वैसे ही होता है. यहाँ सेल्स पर यूनिट होता है, सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इसको हम कहते हैं. तो इट इज एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस बीपी, हम इसको कहते हैं जनरली. तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, देन वी गेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो ये तरीका है. So this is a one problem I discussed with you. Like this is a question. Question में क्या है, calculate per unit and total contribution. आपको total contribution और per unit contribution निकालना है. तो ये डाटा है आपके पास. सेल्स आपको दिया है, सेल्स इन रुपीज 40,000, सेल्स इन यूनिट्स दी है 4,000. यूनिट हमारी यूज आती है पर यूनिट बनाने में प्राइस को. वेरिएबल कॉस्ट आपको दिया है 30,000. तो हमें करना क्या है कि कंट्रीब्यूशन निकालना है. टोटल कंट्रीब्यूशन को फाइंड करने के लिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपने लिखा है. तो सेल्स है आपकी 40,000, वेरिएबल कॉस्ट है 30,000. तो 40,000 माइनस 30,000 इट इज 10,000 रुपीज. तो दैट इज अ कंट्रीब्यूशन. तो बहुत ही सिंपल है. देन पर यूनिट अगर हमें फाइंड करना है तो सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. अब यहाँ क्या करना है कि हमारे पास पर यूनिट प्राइस नहीं दिया है, तो हमारे पास क्या है, सेल्स इन यूनिट दिया है. तो सेल्स इन यूनिट से हम इसको डिवाइड कर देंगे, सेल्स को इन रुपीज को और वेरिएबल कॉस्ट को, तो हमारे पास पर यूनिट प्राइस मिल जाएगा. तो यहाँ हमने किया है सेल्स अपॉन 4,000 यूनिट्स हमने किया है, माइनस 30,000 अपॉन 4,000. तो ये हो गया 10 माइनस 7.5. तो अगर 40,000 को 10 आया, 30 को हमने किया 4,000 से 7.5, देन वी गेट 2.5 रुपीज पर यूनिट. तो ये जो है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका निकल कर आ जाएगा. तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को फाइंड कर सकते हैं. और हम इसमें मिसलेनियस प्रॉब्लम्स अब डिस्कस करेंगे, तो आपको इसमें बताएंगे क्या होगा. आगे हम बढ़ते हैं. तीसरा जो मेथड है वो है ग्राफिक मेथड. तो ग्राफिक मेथड क्या है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और यहाँ पर कई बार क्वेश्चंस जो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए आपके पास आ सकता है कि ग्राफ में इसको बनाइए. तो बेसिकली ग्राफिकल मेथड में ब्रेक इवन चार्ट का हम उपयोग करते हैं. ब्रेक इवन चार्ट जो होता है, तो ब्रेक इवन चार्ट इज अ
ब्रेक इवन चार्ट बेसिकली सो ग्राफिकल मेथड में हम लोग ब्रेक इवन चार्ट का यूज करते हैं। तो ब्रेक इवन चार्ट बेसिकली इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन विच शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट, है ना। तीनों में जो रिलेशनशिप है उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के रूप में हम इसको दिखाएंगे। एंड इट शोज द ब्रेक इवन पॉइंट आल्सो, एंड इट आल्सो इंडिकेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट और लॉस एट वेरियस वॉल्यूम्स ऑफ एक्टिविटीज। अलग अलग वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज पे, अलग अलग वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन या सेल्स पर जो है क्या प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, या ये पॉइंट जो है इंडिकेट करता है, ब्रेक इवन पॉइंट को भी इंडिकेट करता है। उस चार्ट में हम इसको बना सकते हैं। एंड बेसिकली जो लाइंस होती हैं इसमें ग्राफ में, वो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल्स रेवेन्यू के लिए प्लॉटेड ऑन ग्राफ अगर हम बनाना चाहें तो उसको अलग अलग शो कर सकते हैं। एंड पॉइंट at which the total lines total cost line intersect with each other, तो total revenue line known as a break even point। तो total revenue plus total cost जो हमारा आता है, उन दोनों को जहां intersect करते हैं वो हमारा break even point कहलाता है। तो as you know very well, तो दिस इज अ प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग ब्रेक इवन पॉइंट। तो प्रोसीजर में क्या होगा कि सबसे पहले आपके पास ये प्रॉब्लम दी गई है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट बीईपी इन यूनिट्स एंड कंस्ट्रक्ट द ब्रेक इवन चार्ट। तो ब्रेक इवन चार्ट हमें बनाना है। जैसे फिक्स कॉस्ट आपका 40,000 है, सेलिंग प्राइस 10 रुपीज पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपीज पर यूनिट है। तो बीईपी इन यूनिट्स हमें फाइंड कर लिया हमने, तो एफ अपॉन सी पी यानी कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने इसको कहा है। एफ मींस फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो एफ कितना है आपका 40,000, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए एस माइनस बीपी हमने कर दिया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो ये आ गया 40,000 अपॉन 4, 10,000 यूनिट्स आपका जो है ब्रेक इवन इन यूनिट बनेगा। यानी कि आप ये देख सकते हैं चार्ट में, यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हैं, ये ग्राफ जो है आपका दिख रहा होगा। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में हम देख रहे हैं कि ये आपके यूनिट्स हैं। टोटल से कॉस्ट या सेल्स रिवेन्यू आपको दिखाया गया है यहाँ पे। तो हमारा जो सेल्स रिवेन्यूज है, ये आपका सेल्स रिवेन्यू 50,000, 1 लाख, 1 लाख 51, 2 लाख, 250। तो ये हमने दिखाया, जीरो से स्टार्ट किया, 50,000 का हमने इसमें डिफरेंस लिया। तो 50, 100, 150, 200 एंड 250 का गया। फिर यहाँ पर हमने प्रोडक्शन दिखाया, ये आउटपुट से आपका 5, 10, 15, 10, 25। तो ये 5, 10, 20 एंड 25 आप देख रहे हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमारे ब्रेक इवन पॉइंट पर यूनिट कितना गया है, 10,000। तो ये हमारा 10,000 यूनिट्स है, और यहाँ पर हमने इसको इंटरसेक्ट किया है। तो 10,000 यूनिट्स में हम देख रहे हैं कि जो 10,000 यूनिट्स है वहां पर आपका क्वेश्चन में आप देखें 40,000 आपका जो है वो फिक्स कॉस्ट है, और 60,000 जो है वो आपका वेरिएबल कॉस्ट है, और टोटल कॉस्ट जो है 1 लाख रुपीज है। तो ये आप एक तरीके से हम देखें तो क्या है, 1 लाख रुपीज है। तो 1 लाख रुपीज और 10,000 यूनिट्स पे आपका दोनों चीजें, यानी कि टोटल कॉस्ट जो है 1 लाख रुपीज है, और जो हमारा आउटपुट है वो ब्रेक इवन पॉइंट का 10,000 यूनिट है। तो अगर हम 10,000 टोटल यूनिट को अगर हम देखें, तो जो टोटल कॉस्ट लाइन है ना, जो टोटल कॉस्ट लाइन है, ये आप देखें टोटल कॉस्ट लाइन, और ये क्या है हमारी सेल्स लाइन है, सेल्स रेवेन्यू लाइन है। तो टोटल कॉस्ट यहाँ से हम देखेंगे, ये क्या है, ये फिक्स कॉस्ट है। नीचे की जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, फिक्स कॉस्ट। ये नीचे का जो पार्ट है इसको हम फिक्स कॉस्ट लाइन में नीचे फिक्स कॉस्ट दिखा रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक जो है 50,000, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी, 40,000 है। तो 50,000 से नीचे हमारा ये है, ये 50,000 पूरा का पूरा फिक्स कॉस्ट लाइन इसको शो करता है, बिकॉज ये जो फिक्स कॉस्ट है वो कांस्टेंट होती है। उसके बाद हमने क्या करा, वेरिएबल कॉस्ट देखा। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या था, 30, 60, 90, 120, 150। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है यहाँ से आप उठाते हैं इसको, तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी ऑटोमेटिकली इसमें क्रिएट हो जाती है, हम देख रहे हैं। तो ये जो लाइन है इसके बाद हमने क्या करना है, टोटल कॉस्ट को देखना है 40, 70। तो यहाँ से हमने पकड़ा ये टोटल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट के ऊपर से शुरू होगी। तो टोटल कॉस्ट जो है हमने यहाँ से इसको लिया। तो स्टार्ट किया 40,000 से, फिर हमारा 70,000 गया, फिर 60,000, फिर 1 लाख, फिर 30, फिर ये, फिर टोटली हमारा कितना गया, 1,90,000। तो ये आप यहाँ देखेंगे, इससे नीचे आपकी जो है ये टोटल कॉस्ट आ जाती है। फिर हमारे सेल्स रेवेन्यूज है, सेल्स रेवेन्यू जीरो से हम स्टार्ट करते हैं, और ये 50, और ये 1 लाख, फिर 150 एंड लास्ट में 250 तक हमारा गया है। जहां पर सेल्स कॉस्ट, सेल्स रेवेन्यू लाइन और टोटल कॉस्ट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगी, उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे। अब इसमें क्या होगा, जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट के ऊपर और सेल्स रेवेन्यू के बीच में जो लाइन बचेगी वो प्रॉफिट कहलाता है। और जो यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे
आप देखेंगे कि ये जो टोटल कॉस्ट है और ये सेल्स रेवेन्यू के जो बीच का पार्ट है ये लॉस कहलाएगा, यानी कि इसके नीचे अगर हमारी रेवेन्यू जाती है तो हम लॉस में चले जाते हैं। और ये जो पार्ट है ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है, यानी कि इस पॉइंट के बाद जो ये एरिया है आपका ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगा, यानी कि फिक्स कॉस्ट और इसके ऊपर जो है, या हम इसको भी ऊपर जाते हैं तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कि हम यहाँ पर सेफ हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरीके से ब्रेक इवन चार्ट आप जो है विद द हेल्प ऑफ टेबल जो है निकाल सकते हैं, और जो ब्रेक इवन पॉइंट इन पॉइंट्स है उसको हम इसमें करते हैं। अब इसमें क्या होता है प्रोसीजर अगर आपको देखना है तो एक एक पॉइंट आपको बढ़ना होगा। जनरली ब्रेक इवन टेबल आपको सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करनी होती है, जैसे हमने ये टेबल बनाई है, आप देख रहे हैं टेबल है क्वेश्चन में, ये टेबल आपको बनानी पड़ेगी। आउटपुट 3 यूनिट्स होगा, फिक्स कॉस्ट होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट और सेल्स रेवेन्यू। इसके बाद कॉस्ट एंड सेल्स रेवेन्यू जो है उसको प्रेजेंट करना होगा एक्स एक्सिस पर। तो सेल्स एंड कॉस्ट आप देख रहे हैं वो जो है कॉस्ट एंड सेल्स रेवेन्यू आर रिप्रेजेंटेड ऑन वर्टिकल एक्सिस, इट इज नोन एज वाई एक्सिस। तो इसको वाई एक्सिस पे सेल्स और कॉस्ट, सेल्स रेवेन्यू और कॉस्ट को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। फिर एक्स एक्सिस पे जो है आपका जो है फिक्स कॉस्ट लाइन ड्रॉन की जाती है वाई एक्सिस को छूते हुए, और जो है उसके बाद लाइन जो है इंडिकेट करेगी फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। फिर हमें जो है वेरिएबल कॉस्ट फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटीज को प्लॉटेड करना होगा, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट के हिसाब से, जितना ये दिया 30 60 90 और इसके हिसाब से हमें प्लॉटेड कर लेंगे। और देन देयर आफ्टर द रेवेन्यू लाइन इज ड्रॉन, फिक्स कॉस्ट लाइन एंड रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट। तो वेरिएबल वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट, तो वेरिएबल को प्लॉटेड कर सकते हैं विद ओवर द प्लॉटेड फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के ऊपर अगर हम करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट लाइन इज ड्रॉन अबव द फिक्स कॉस्ट लाइन एंड रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट एट वेरियस लेवल्स। तो वेरिएबल कॉस्ट वो इसमें हम प्रेजेंट कर सकते हैं, और ये ऑटोमेटिकली जैसे हमने करा तो ये टोटल कॉस्ट इसमें बन जाएगी, तो बनेगा इसी से। और चाहे तो आप डायरेक्टली फिर उसकी कॉस्ट को निकाल सकते हैं। देन देर आफ्टर सेल्स रेवेन्यू इज ड्रॉन रिप्रेजेंट द सेल्स रेवेन्यू, उसको भी हम सेल्स रेवेन्यू को फिर डॉट प्लॉटेड कर लेंगे अपने ग्राफ में, और उसकी लाइन को हम बना लेंगे सेल्स लाइन को। देन the point at which total cost line and sales revenue line intersect each other then it is known as break। जहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों पॉइंट एक दूसरे को टच कर रहे हैं सेल्स और कॉस्ट, तो ये इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे। नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस बीईपी कैन बी डिटरमाइंड बाय द ड्राइंग द परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस। कितनी है हमारी, ये आप देखा 10,000 थी हमारी, और जो हमारा सेल्स है वो आपका 1 लाख रुपीज ड्रॉइंग करना है। तो इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे और प्रॉपरली हमारा प्रोसीजर जो है वो फॉलो हो जाता है। एट द एंड रिप्रेजेंट द लॉस एरियाज एंड सेल्स रेवेन्यू एरिया एक्सेट्रा। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, ये लॉस एरिया है, ये रेवेन्यू एरिया है, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी एरिया है। तो ये डिफरेंट एरियाज हैं जिनको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तरीका है, 3 मेथड्स जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट में या कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन आस्क मी एंड call me. Oh, 9 number. Thank you very much. And if you have any problem, then go for the Dr. KL Gupta. And thank you very much.